Good morning, everyone. Today we are going to read the chapter 9 from Golden Rays. This is the ninth chapter, A Man's True Son. This story belongs to a gentleman who helps a thief and reforms his life. After some time, when the thief becomes a very great personality, he comes to the gentleman and gives him a very precious gift. Then gentleman realized that this man is his true son. Let's start, but this is the time of difficult word. Let's start. Feast. Feast means a grand treat or banquet. Greet. Greet यानी welcome. Entertained यानी serve या took care of. Caught sight of means saw देखा. A great deal of ये है big quantity बहुत अधिक मात्रा में. And quality quietly means in a low voice बहुत धीरे आवाज. Priceless very costly. And grateful means thankful आभार रहना किसी का एहसानमंद रहना. बहुत ही इजी लैंग्वेज है इस चैप्टर की एंड सो दैट्स वाई वेरी few difficult words. Now come to the point and start our lesson. A man's true son. There was a great feast being held in the house of a certain gentleman. किसी जेंटलमैन के घर पे बहुत बड़ा भोज आयोजित किया गया था. ये उसका बर्थडे था. And many of his relations had come from far and near to greet him and bring him gifts. और उसके बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए उसके नज़दीक और दूर के बहुत सारे रिलेशंस यानी रिलेटिव्स आए थे उसको बधाई देने और उसके लिए गिफ्ट्स भी लाए थे. He entertained his guest. उसने अपने सारे गेस्ट का बहुत अच्छे से ध्यान रखा. It was his duty to look after them well. और ये उसका फर्ज था कि जो उसके घर में मेहमान आए हैं उनका अच्छे से देखभाल करें. In the evening he gave a great feast. और जब शाम हुई तो उसने बहुत बड़े भोज का आयोजन किया. And the gift which the guests brought were placed in the center of the hall so that all might see them. और जो शाम के समय जब सेलिब्रेशन हो रहा था उस हॉल के सेंटर में उसने वो सारे गिफ्ट रख दिए ताकि सब लोग उसे देख सके. When the feast was over, और जब ये फीस्ट यानी ये जो समारोह था भोजन का वो खत्म हुआ पूरा हुआ. And the guest had gone away, और सारे मेहमान जा चुके थे. The man went toward the place where the gifts were. वो आदमी उस स्थान पे आया जहाँ सारे गिफ्ट रखे हुए थे. And began to put them away carefully, और उन्हें वहाँ से बहुत ध्यानपूर्वक ले जाने लगा. As he did so, लेकिन जैसा ही उसने ऐसा किया, he suddenly caught sight of the shadow of a man's head on the floor of the hall. अचानक उसने देखा कि उस हॉल की फर्श पर किसी व्यक्ति का सिर, उसकी परछाई देखी, उसने शैडो देखी. He knew that there must be someone He knew that there must be someone hiding in the roof. वो जानता था कि कोई न कोई ऐसा इंसान है जो उसकी छत पे छुपने की कोशिश कर रहा था. And realized that there was a thief up there. और ये रियलाइज किया कि वहाँ कोई ऊपर चोर है. He called his servant and said, अब उसने अपने सर्वेंट को पुकारा और कहा, all the guests have not yet been fed. यानी सारे मेहमानों को अभी तक अच्छे से खाना नहीं खिलाया गया है. Bring back the dishes. इसलिए सारे डिशेस वापस लेकर आओ. The servant did as he was told. और सर्वेंट ने जैसा उसे कहा गया वैसा उसने किया, सारे डिशेस लाया. He brought back several dishes. सारी कितनी ही सारे dishes वापस लेके आया. And waited for his master to tell him to serve them. और अपने मास्टर के उस ऑर्डर का इंतज़ार करने लगा कि वो उसे कब इन डिशेस को परोसने का कहें. But the man told him to leave them and go. लेकिन उस जेंटलमैन ने कहा कि तुम इन सबको यहीं रख दो और चले जाओ. As he wished to be alone.
क्योंकि वो वहां पर अकेला रहना चाहता है। उसने सर्वेंट को ये बोला और उसे भेज दिया। Then he looked up at the man who was hiding in the roof and said, फिर उसने ऊपर छत पर देखा जो आदमी छुपने की कोशिश कर रहा था उसकी तरफ और कहा, It is good of you to come to my house on my birthday. कि आपका बहुत बहुत आभार कि आप आज मेरे बर्थडे पे मेरे घर पे आए हैं। I thought that all the guests had left. मुझे लगता है मैंने तो सोचा था कि सारे मेहमान जा चुके हैं, but you have not yet been served. लेकिन आपको तो अभी तक सर्व भी नहीं किया गया, आपकी तो सेवा भी शुश्रूषा नहीं की गई। प्लीज कम एंड शेयर दिस हम्बल मील विथ मी। इसलिए प्लीज नीचे आओ और मेरे साथ ये भोजन करो। The thief was very much afraid as he climbed down from his hiding place. लेकिन चोर, उसने तो बहुत ही विनम्रता से कहा कि नीचे आओ और मेरे साथ भोजन करो। अब चोर को डर लगा, चोर बहुत डर गया। As he climbed down, जैसे ही वो नीचे उतरा, उसके अपने जो हाइडिंग प्लेस था उसका, जब वो छुपा हुआ था, वहां से जब वो नीचे उतरा तो बहुत डर गया। But he was surprised to find himself treated as all the other guests. लेकिन वो बहुत ही सरप्राइज हुआ जब उसको अन्य मेहमानों की तरह ही ट्रीट किया गया। His host served him with great courtesy. बहुत ही विनम्रता के साथ में उसके मेजबान जो होस्ट थे, यानी वो जो जेंटलमैन, उसने बहुत ही विनम्रता के साथ उसे परोसा। And when he rose to leave, और जब वो जाने के लिए खड़ा हुआ, the old man gave him a gift and a bag of coin. तो उस ओल्ड मैन ने उस चोर को बैग ऑफ कोइन और गिफ्ट भी दिया। And himself took him to the gate of the courtyard. और आंगन के जो घर का जो मेन गेट होता है वहां तक उसे छोड़ने के लिए भी गया। जैसे अन्य गेस्ट को छोड़ने के लिए वो गेट तक गया, वैसे उसे भी छोड़ने के लिए गया। यानी उसे उसके साथ चोर के जैसे ट्रीट नहीं किया, वरना वो पुलिस को बुला देता, उसको पकड़वा देता। लेकिन ऐसा उसने कुछ नहीं किया, बल्कि उसे अपने बहुत ही अन्य जो मेहमान थे उनके जैसे उसके साथ व्यवहार किया और उसको सम्मान दिया, भोजन करवाया, गिफ्ट भी दिया और उसकी हेल्प करने के लिए उसे बैग ऑफ कॉइन्स, सिक्के दिए बहुत सारे थैला भर के, और उसे आंगन तक, गेट तक छोड़ने गया। सेवरल इयर्स लेटर, कितने ही वर्षों बाद, द ओल्ड जेंटलमैन्स बर्थडे फीस्ट वॉज अगेन बीइंग हेल्ड। उसी जेंटलमैन की बर्थडे का वापस वो भोज आयोजित किया गया। मैनी गेस्ट केम एंड ब्रॉट हिम गिफ्ट। बहुत सारे मेहमान आए, सब उसके लिए गिफ्ट लाए। एंड एज ही वॉज ग्रेटली लव्ड, जैसा उसे हमेशा से बहुत ज़्यादा पसंद रहा है, सम ऑफ द गिफ्ट वर ब्यूटीफुल। उसमें से बहुत सारे कुछ गिफ्ट ऐसे थे जो बहुत 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 सुंदर थे, और उसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना, अपने रिलेशंस को बुलाना उसे बहुत पसंद रहा। और जो गिफ्ट उसके लिए लेकर आए थे वो लोग, उनमें से कुछ गिफ्ट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल थे। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द इवनिंग, और संध्या जब शाम समाप्त होने लगी, स्ट्रेंजर केम ब्रिंगिंग अ स्मॉल बॉक्स फॉर द ओल्ड मैन। एक स्ट्रेंजर आया अपने साथ में एक छोटा सा गिफ्ट बॉक्स लेकर, उस ओल्ड मैन के लिए एक गिफ्ट बॉक्स लेकर आया। He refused to tell his name but asked if he could see the old man himself. उसने अपना नाम, जो बाहर जो गेट पे खड़े रहते हैं, उसको नाम तो बताने से मना किया, लेकिन उसने कहा कि क्या वो उस वृद्ध व्यक्ति को मिल सकता है। When the old man opened the box, he found him inside it a precious pearl. जब उस ओल्ड मैन ने उस गिफ्ट बॉक्स को खोल के देखा, उसने देखा उसके अंदर एक बहुत ही प्रेशियस पर्ल था, बहुत ही अनमोल मोती था उसके अंदर, वर्थ अ ग्रेट डील ऑफ मनी, बहुत बड़ी मात्रा में जिसकी कीमत थी। He told his servant to bring the stranger immediately. और उसने अपने नौकर को कहा कि उस स्ट्रेंजर को तुरंत लेकर आओ। The stranger entered. अब वो स्ट्रेंजर आया। As he approached the old gentleman, जैसे ही वो उस ओल्ड जेंटलमैन के पास पहुंचा, he bowed low, वो झुका, प्रणाम किया। He knew that his host was unable to recognize him. वो जानता था कि उसकी जो होस्ट है, जो जेंटलमैन है, वो उसे पहचान नहीं पाएगा, पहचान नहीं सकेगा। Because his sight was dim. क्यों नहीं पहचान सकेगा? क्योंकि उसकी विजन अब डिम हो गई थी।
सो ही वेंट नियरर, इसलिए वो उसके और पास गया, एंड सेड क्वाइटली, और बहुत धीरे से बोला, आई एम द वन whom you helped greatly many years ago, कि मैं वो व्यक्ति हूँ जिसकी कई वर्षों पहले आपने मदद की थी, मैं वो इंसान हूँ. It was very kind of you to feed me when I come to your house uninvited. और जब मैं आपके घर अनइनवाइटेड यानी बिना बुलाए आपके घर पर आया था, उस वक्त आपने मुझे भोजन करवाया था, बहुत अच्छा भोजन करवाया था. इट इज़ माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, अब ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी देखभाल करूं. आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, आप अगर चाहें तो मेरे साथ डिनर कर सकते हैं, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम. लेकिन उस आदमी ने कहा कि अब सॉरी, हम बीच में कुछ मिस हो गए ना. हाँ, या इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू फीड मी व्हेन आई केम टू योर हाउस अनइनवाइटेड. उस स्ट्रेंजर ने बोला कि जब मैं आपके घर पे बिना बुलाए आपके घर आ गया था और आपने मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया, मेरे साथ भोजन किया. तब जेंटलमैन ने कहा, ओल्ड मैन ने रिप्लाई दिया कि इट्स ग्रेट जॉय टू हियर दैट आई वॉज एबल टू डू सम गुड टू यू. ये सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं तुम्हारे किसी काम आया, मैंने तुम्हारा कुछ एहसान किया, मतलब तुम्हारे लिए कुछ अच्छा काम किया. ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई. इट्स माई ड्यूटी टू लुक आफ्टर यू, अब मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी देखभाल करूँ, तो मेरे घर पे आए हो इसलिए. आई वॉन्ट यू टू हैव डिनर विद मी, मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ आज का डिनर करूँ, बट इन ऑर्डर टू इन्वाइट यू आई मस्ट फर्स्ट नो योर नेम. लेकिन आज के दिन मैं तुम्हें इनवाइट करूँ अपने साथ भोजन करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले मुझे ज़रूरत है आपका नाम जानने की, यानी आप अपना नाम बताओ. द मैन हु हैड ब्रॉट द प्राइसलेस गिफ्ट, वो व्यक्ति जिसने इतना अनमोल, इतना प्राइसलेस प्रेशियस गिफ्ट उसे दिया था, उसने रिप्लाई दिया कि सर वंस बिफोर, कि सर एक बार, बहुत पहले की बात है. एंड अनदर ओकेजन लाइक दिस, इसी तरह का कोई और ओकेजन होगा. यू इन्वाइटेड अ गेस्ट विदाउट नोइंग हिज नेम, आपने एक ऐसे गेस्ट को इन्वाइट किया था जिसका नाम आप नहीं जानते हैं. ऐसा ही कोई वो दिन था, ऐसा ही कोई अवसर था. दैट गेस्ट वॉज हाइडिंग इन योर रूफ एंड विशिंग यू इल, और वो स्ट्रेंजर, वो गेस्ट जिसे आपने बिना नाम जाने अपने साथ बुलाया था, इनवाइट किया ना, वो गेस्ट आपके घर की छत पे छिपा हुआ था और आपका कुछ बुरा भी कर सकता था. एंड विशिंग यू इल, आपका बुरा करना चाहता था, मतलब आपके वहाँ लूटना, चोरी करना, कुछ ऐसा आपका अहित करना चाहता था. येट यू ट्रीटेड हिम विद ऑनर, फिर भी आपने उसके साथ बहुत ही सम्मान के साथ व्यवहार किया. एंड कर्टसी, और बहुत ही विनम्रता के साथ व्यवहार किया. Could you not invite him today as you did then? क्या आपने उस वक्त जैसे उसका नाम बिना जाने इनवाइट किया था, वैसे ही आज फिर से ऐसा नहीं कर सकते? The old gentleman remembered how he had found the thief hiding in his roof. अब उस ओल्ड जेंटलमैन को याद आ गया कि कैसे कोई चोर उसके घर आया था जो छत पे छुपने की कोशिश कर रहा था. And the stranger explained how the kindness shown to him on that occasion had changed his life. और फिर उस स्ट्रेंजर ने बताया कि उस दिन आपकी ने जो मेरे साथ इतना काइंडनेस का बिहेव किया था, इतनी दया दिखाई, गिफ्ट दिया, मेरी मदद के लिए सिक्के दिए, तो उसने कैसे मेरे जीवन को बिल्कुल चेंज कर दिया. सिंस दैट, उस दिन से, सिंस दैट डे ही हैड गिवन अप हिज इविल वे, उसने अपने सारे बुरे रास्ते छोड़ दिए कमाई के. एंड ट्राइड टू अर्न हिज लिविंग बाय ऑनेस्ट वर्क, और अपनी जो आजीविका है वो बिल्कुल ईमानदारी से कमाने की कोशिश करने लगा. एज ईयर वेंट बाय, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ही बिकेम वेरी रिच, वो बहुत ही अमीर बन गया. बट दैट डिड नॉट मेक हिम एरोगेंट, लेकिन इस तरह जो वो अमीर बना ना, तो वो एरोगेंट नहीं हुआ, बहुत घमंड नहीं आया उसे पैसों का कि देखो अब मेरे पास इतना पैसा आ गया है. नहीं, वो बिल्कुल ऐसा घमंडी नहीं हुआ. इट वॉज हिज ड्यूटी, क्योंकि ये उसकी ड्यूटी बनती थी. ही फेल्ट, उसे ये महसूस होता था, टू शो टू अदर द सेम काइंडनेस दैट हैज़ बीन शोन टू हिम बाय द जेंटलमैन. उसे ये हमेशा ये महसूस करता था कि वो भी उसी तरह की काइंडनेस अन्य लोगों के साथ में करें
जैसे कभी किसी जेंटलमैन ने उसके साथ की थी, कभी किसी जेंटलमैन ने उसकी मदद की थी, उस वजह से उसकी लाइफ चेंज हो गई, तो आज वो भी अन्य लोगों की मदद करके उनके जीवन को चेंज करना चाहता था। तो इस बात को लेकर उसे घमंड नहीं आया कि मेरे पास अब इतना पैसा आ चुका है, नहीं, वो बहुत दयालु व्यक्ति बना। ओल्ड जेंटलमैन वॉज डीपली टच्ड बाय द स्टोरी। अब उसकी स्टोरी सुन के ओल्ड जेंटलमैन बहुत ही भावुक हुआ। एंड वेन ऑल द अदर गेस्ट हैड left, जब सारे गेस्ट जा चुके थे, he turned to the stranger and said, उसने कहा, you see I have many sons and grandsons, देखो मेरे बहुत सारे बेटे हैं, मेरे और पोते भी हैं, but none of them seem so dear to me this night as you, लेकिन आज की रात मुझे मेरे उन बेटों, उन पोतों, उन सब में भी कोई भी इतना प्रिय नहीं होगा जितना तुम हो। क्यों है वो इतना प्रिय लगा उसे? थ्रू अ लिटिल काइंडनेस विच आई डिड टू यू सो मेनी ईयर्स अगो, इतने वर्ष पहले मैंने तुम्हारी एक छोटी सी मदद की थी, छोटी सी दया रखी। अदर एक्ट्स ऑफ काइंडनेस हैव बीन बॉर्न, उससे क्या हुआ, इतनी छोटी मैंने मदद तुम्हारी की तो तुमसे दया भाव के कई सारे कार्य और भी पनपने लगे, मतलब तुमने आगे से आगे इस भाव को आगे से आगे पनपाया है। And now there is no limit to the number of sons and grandsons and great grandson of that one small deed of mine, और वो जो छोटा सा कार्य मैंने तुम्हारे लिए किया था, उसके नाते आज मेरी दुनिया में मेरे बेटे, मेरे पोते, मेरे पड़ पोतों की भी कमी नहीं है। मतलब वो कार्य आगे से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत फैल गया है, और इस तरह मेरे पास पोते भी हो गए, मेरे पड़ पोते भी हैं, और उसी कार्य के हिसाब से मेरे कितने सारे बेटे हो चुके हैं आज। आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, बिकॉज यू हैव बीन द मीन्स ऑफ पासिंग ऑन दैट काइंडनेस, क्योंकि तुमने उस दया भाव को, उस दयालुता को आगे से आगे पास करने का तुम साधन बने हो। यू आर इंडीड अ ट्रू सन टू मी, तुम वास्तविक रूप से मेरे सच्चे बेटे हो। एंड इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू टू कम टू मी एंड टेल मी योर स्टोरी, और इट वॉज वेरी गुड ऑफ यू, तुम्हारा बहुत बहुत बड़ा भला है, भलापन है तुम्हारा, अच्छाई है तुम्हारी कि तुम आज यहाँ मेरे पास आए और तुमने अपनी पूरी कहानी मुझे सुनाई है। वरना कौन सुनाए, अब बड़े आदमी बन गए, वापस कहाँ जाने की ज़रूरत थी उनके पास, नहीं। लेकिन उस आदमी के अंदर इतनी ग्रेटफुल था वो उस जेंटलमैन के प्रति कि उसके ऐसे ही अवसर पे वापस उसके घर गया और उसको सारी कहानी बताई कि देखो आज आपकी वजह से, आपने छोटी सी मेरी मदद की थी, उस वजह से मेरा जीवन बिल्कुल चेंज हो गया है। अगर वो जेंटलमैन भी उसको अगर चोर समझ के पुलिस के हवाले कर लेता तो वो आदमी वापस क्या, चोरी के लिए तो 2-3 महीने की सजा, फिर निकलता, फिर बहुत बड़ा चोर हो जाता। लेकिन उसने उसको बिल्कुल उसका मन ही चेंज कर दिया, उसका हृदय परिवर्तन किया और मदद की। इस तरह हमें भी जितना हो सके लोगों की मदद करनी चाहिए, ताकि सब चोर एक जैसे नहीं होते हैं। तो कुछ लोगों की हमारी द्वारा थोड़ी सी की गई मदद भी अगर किसी के जीवन को चेंज कर सकती है तो हमें ऐसा अच्छा काम ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।